Now going ahead with essay. So we are moving ahead with what essay 700. What is essay 700? Forming an opinion and reporting on the financial statements. So this standard basically focuses on giving you a format of the audit report where everything is true and fair. Okay, where everything is. So the standard tells you what is our objective. We want to obtain a reasonable assurance and we want to express an opinion. Okay, we want to obtain a reasonable assurance and we wish to express an opinion. So here in the standard, the objective is very simple to form an opinion. Can you form an opinion? So firstly, we want to form an opinion on the financial statement based on the evaluation of the conclusions drawn and express clearly that opinion through a written. Okay, so what are our objective? We want to form an opinion and we want to express this through a written. Now, whenever we want to form an opinion, auditors shall form an opinion on financial statements and preparing on material respects in accordance with the AFRF. What is AFRF? Applicable Financial Reporting Framework. Now, to form his opinion, auditor needs to conclude whether he has obtained reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material mistake. But now, to frame this particular conclusion, what are the things that you will have to take into consideration? So, technically, three things. Firstly, in accordance with SA 330, whether PSI has been obtained. See, 330 talks about further audit procedure. Yeah, 330 talks about further audit procedure. So, as per 330, we need to conclude whether the PSI has been obtained. As per 450, we need to conclude whether there are material misstatements individually or in aggregate. If there are material misstatements, can we say everything is true and fair? No. In case if we have not obtained PSI, can we say everything is true and fair? No. So when can I say everything is true and fair? We have obtained PSI. We conclude as per 450, there are no uncorrected misstatements which are material individually or in aggregate. Okay, so conclusion in accordance with 450, whether uncorrected misstatements are material individually or in aggregate. Now, this next point deals actually with SF 540. Can this actually deals with what? 540. So when we go to 540, we'll be discussing this in detail, but still let us go through here. While the financial statement are prepared in all material respect in accordance with AFR, whenever we want to see whether the financial statement are prepared in accordance with what? AFRF, we need to consider a few things. Evaluation option include consideration of qualitative aspects of the entity's accounting practices, including indicators of the possible management biases. So firstly, we want to evaluate the qualitative aspects of what? Accounting practices. When can we say the accounting practices are appropriate? Whenever the accounting policy selected by the entity, the accounting policy selected by the management are appropriate. To give you a basic example, for example, if you choose LIFO, is LIFO a proper selection of the accounting policy? No. So first you want to evaluate whether what are the qualitative aspects of accounting practices. Next, whether there is a biasness in the management check. See, financial statements are based on the judgments of the management. Hence, we cannot ever give an absolute assurance. We can only give a reasonable assurance. But we want to evaluate whether there is a biasness, whether there is a biasness. For example, we have been using air conditioning since ages. We know every air conditioner for on an average will work for around 5 to 6 years. But still, we ended up using estimated useful life to be 10 years. Now there is a biasness here. Because as soon as we change the estimated useful life from 6 years to 10 years, the depreciation per annum will go up. Just because the depreciation will go down, the profit will increase. Why is the versa? Though we know that our AC will last for 6 years, we are taking estimated useful life as only 2 years. Then in this case, the depreciation will be high. My profit will go down. Okay, so here what we are trying to say is we are going to identify whether there is a biasness in the judgments made by the management. So when we are trying to evaluate whether the financial statement are as per what? AFR. The financial statement are as per what? We are evaluating the qualitative aspects of the accounting practices, including the indicators of the possible bias in the management. Whether in the view of the AFRF, financial statement disclose significant accounting policies
So when do we say the accounting practices are appropriate? When they have adequate disclosures. Yeah, when they have what adequate? So whichever is the accounting policy they have selected, whether the accounting policy selected are what adequately disclosed. Second, the accounting policies are consistently applied. See, consistency is one of the fundamental assumptions. What are the three fundamental assumptions? Going concern, accrual, consistency. So firstly, we need to see whether all the accounting policies that we are using are disclosed. Second, the accounting policies that we are using are consistently applied. So if there was SLM in the previous year, again SLM. If it was WDV in the previous year, again WDV. If it was FIFO in the previous year, FIFO. If there is a change in the accounting policy, then in that case, we need to account the same and we need to disclose the same. So here what we are trying to see is whether they have disclosed all the significant accounting policies selected, whether there has been consistent application of those accounting policies. Thirdly, all the estimates made by the management are reasonable. What we are evaluating, whether the estimates made by the management are what? Reasonable. Whatever information is given in the financial statement is still relevant, it is reliable, it is comparable, and it is understandable. Four things. Firstly, it is relevant. So when we talk about relevance, we are talking about whether it is relevant to the users, whether, for example, it is relevant to the time period of the financial statement, whether they are user reliable, comparable, and understandable. So next, financial statement provide disclosures to enable intended users understand effect of material transaction or events, information conveyed in the financial statement. So for example, let us say if there is an impact on going concern, there is a subsequent event, that is event occurring after the balance sheet date, whether the disclosure are given just so that users understand those events and transaction in a better way. Lastly, the terminology used by the entity is appropriate. For example, balance sheet for as on profit and loss account for the year ended are nothing but what terminologies. So you can write an example here, balance sheet as on profit and loss for year ended. So once again, to evaluate the requirements of AFI, what we evaluated was 6 months. Firstly, whether they have disclosed the significant accounting policies, whether they have applied those accounting policies consistently. The judgments made by the management are reasonable. Whatever information is given is relevant, reliable, comparable, understandable. Disclosures are given to the users so that they can understand the effect of the transaction or the events that are conveyed in the financial statement. And the terminology used is what. So once again, while forming an opinion, first we need to see the conclusions in accordance with S&P 30 do we have signed. As per 450, whether the uncorrected misstatement are material, individually or in time. Next, we want to evaluate. We want to evaluate what two things: qualitative aspects of the accounting practices. Second, whether there is a possible bias. Now, to evaluate whether the requirements of AFRF, we need to evaluate how many parts? 6 parts. What are the 6 parts? Financial statement disclose the accounting policies. They are consistently applied. Judgments made by the management are reasonable. Then the information presented is relevant, reliable, understandable, comparable. Then the disclose they are given disclosures so that intended users understand the effect of transaction or the events that are conveyed in the financial statements. And lastly, the terminology used in the title of the financial statement is accounting. Now we also have something called as fair presentation framework. We have already written that in the basic concepts. There are two types of framework: general purpose, specific purpose. Under general purpose, we again have how many two framework. One is compliance framework, one is fair presentation. If you don't go to the basic concepts, you will not. So in case of fair presentation, what are we going to do is we will comply with the law and regulation, but we will give additional disclosure to the user for better understanding. We will also depart from the requirement of the AFRF to give users a better understanding.
लिखा है ना अपन ने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाला बेसिक कंसेप्ट, समझाया था ये, समझाया नहीं? बेसिक कंसेप्ट में नहीं लिखा है। So we'll add this in the basic concept. So someone is saying we have already written. So for example, just take a screenshot in your fair financial reporting framework are of two types. One is called as general purpose framework. Next is specific purpose framework. Specific purpose framework is only and only for the intended users. It is only for the intended users. For example, let us say if the financial statement is made only for the venture people, this financial statement will not be useful to the other users. This is called a specific purpose framework. It is only and only for the intended users. General purpose framework again has two types. One is called as compliance framework. Second is called as fair presentation framework. Now, what do you mean by compliance framework? We will comply with the AFRF given under law and regulation. Can we comply with the AFRF given under what? Law and regulation. For example, let us say Schedule 3 is prescribed by the Companies Act. You will follow the Schedule 3 prescribed by the Companies Act. This is compliance. Fair presentation framework says you will comply with the AFRF prescribed under law and regulation. Plus, we will provide additional disclosure. They will provide what? Just so that user, whatever disclosures are necessary, though it is not covered under the AFRF, if we think so it is necessary for the user, we will provide those additional disclosure as well. Okay? So to give you an example, when you go to Banking Regulation Act, they have given the schedule to the third schedule in which Form A is balance sheet and Form B is PN. Under PNL, they don't have any provision for prior period. But now I think so if there is a prior period item, we should disclose it separately for better understanding of the users. I will ask them that you have to provide this additional disclosure, even if the AFRF prescribed by law does not ask for it. Plus, wherever required, we may depart from AFRF. Can we make? Depart from applicable financial reporting framework, if it is useful to the users. So coming back to this point, when the financial statement are prepared in accordance with what? Fair presentation framework, auditor is required to evaluate whether the fair presentation is achieved by considering the form. So we need to evaluate whether we are actually achieving the fair presentation. What will we evaluate? The overall presentation, structure, and content of the financial statement, and including the related notes represent the underlying transaction and event in a manner that achieves fair presentation. Okay, so what we want to evaluate is whether the financial statement are prepared in accordance with what? Fair presentation. We need to evaluate the overall presentation, structure, and the content and the related notes, whether it achieves what fair presentation. Next, whether the financial statement refer to or describe the applicable financial reporting framework. Auditor shall express unmodified opinion when he concludes that financial statements are prepared in all material respect in accordance with AFRF. So whenever we conclude when it is prepared in accordance with AFRF, we will give an unmodified opinion. However, if we conclude based on the evidence obtained, financial statement are not free from material misstatement, we will modify the opinion, or we are unable to obtain sign. In that case, also we will modify the opinion.
So both this point we will discuss when we go to what 705. Okay, so यहाँ पे this particular point was forming an opinion on the financial statement. So once again, when we form an opinion, what we need to evaluate conclusions in accordance with what 330, whether we have obtained side. Secondly, as per SA 450, whether the uncorrected misstatement are material individually or in aggregate. Then we need to evaluate the entity's qualitative aspects as well as whether there is a possible bias in the management judgment. Possible bias in the management judgment will be dealt with at which level SA 540. Then we want to evaluate whether it is as per AFRF. So what we will see is financial statement disclose the significant accounting practice policies. Secondly, they are consistently applied. Third, the judgments made by the management are reasonable. The information conveyed is relevant, reliable, comparable, and understandable. The disclosures enable the users to understand effect of the transaction and the events that are conveyed in the financial statement and the terminology used in the accounting. Wherever we are using fair presentation, we want to evaluate whether we are actually achieve fair presentation. How will we evaluate that? We will check the overall presentation, structure and content, and the notes whether it helps us to achieve the fair presentation. If we think so, if the financial statements are made as per the AFRF, we will end up giving an unmodified opinion. However, if we have sight that a material misstatement exists, or we are unable to obtain sight, in both the cases, we'll have to give what? Modified opinion. Okay, so this is what forming an opinion on the financial statements. Now comes the main part, the basic elements of the audit report. Okay, so here what they are giving us as a format that if everything is true and fair, if everything is, whenever we are giving an unmodified opinion, this is the format that we need to use. Firstly, we will use the title. Okay, we will use the what is the title we will use? We will always use independent auditors report. Is that right? Okay, so auditors report shall have a title clearly indicates that the report, it is a report of the independent auditor. Just to do the screenshot. We will use the screenshot. So add this to the basic concept in the notebook. All the students who are not added, please add it to the basic concepts. So firstly, once again, what we need to have is a title. What will be the title? Independent auditors. Next, what we need to write is address. Okay, what we need to write is, see, usually addresses are going to be what? Shareholders. But it depends, no, whether it is general purpose framework, specific purpose framework. If it is a specific purpose framework, it may not be to the shareholders. So the auditor's report shall be addressed by as required by the circumstances. The report could be addressed to the members of the company in case of a general purpose and to the board of directors in case of special purpose. So it will depend whom are we going to give this. Next is the auditor's opinion. In the auditor's opinion, obviously what we are going to give is auditor's opinion. And what will be the opinion? That everything is going fair because this format is of unmodified opinion. But along with that, what we need to write in the opinion section is date notes. So what we need to write there is date notes. Firstly, we will specify the date. Then we will specify the, for example, let us say this is for the financial year 23-24. So whenever user picks up the audit report, they should exactly know which is the period for which we are expressing an opinion. So the auditor's opinion should include what date. To specify the date or the period covered by each financial statement comprising the financial statement. Next, we need to specify that the financial statements have been audited. So identify the entity whose financial statement have been audited. So state that the financial statement have been what? Audited. Okay, why we need to specify that the financial statement have been audited? There might be cases when we are unable to obtain sight. If we are unable to obtain sight, can we say that financial statement have been audited? No.
So whenever we give disclaimer of opinion, in the next lecture we'll go at 705. When we go to 705, when we go to disclaimer of opinion, whenever we are writing the opinion para, we can never write a line in the financial statement. There we will write we were appointed to be the to audit, but however we could not. So here, since we are getting an unmodified opinion, we will have to state that the financial statement have been audited. So from D, what we specify was A. Then we need to specify what? That it has been audited. Then we will identify the title. Then we will identify the of each statement comprising the financial statement. What are the titles? For example, it can be balance sheet, it can be P&L, cash flow statement for the year ended. So we will identify the title of the each statement comprising the financial statements. Next, identify the entity whose financial statements are audited. So we will have to identify the entity's name. So usually we don't write the entity's name separately because when we start the audit report, that point of time itself, we will always write the entity's name. Hence, we will not usually write it. So when we draft the auditor's opinion, that time we will not write the entity's name. But however, they are saying that we should also identify the entity whose audit report for whose financial statement are audited. Now, our report is not only on the financial statement, our opinion is also on the notes to accounts. So we should also refer to the notes, including the summary of what significant accounting policies. Okay, so what we should add is date notes. Now, what we should add is what is date notes? D is date. What is A? Audited. What is T? Title. What is E? And lastly, what will give us reference to a okay. Now, this particular part, what we will be doing is we will be doing it treatment for us a different way. Here they are giving us how do we draft the opinion para. Yeah, how do we draft the opinion para? But when we go to 705, they have taught us how to draft the opinion for a qualified opinion. They have given us an example how to draft the opinion for adverse opinion. They have given us a draft for how to report for disclaimer of opinion. So there will be multiple formats which will create a lot of confusion. So what we will do is we will study this in tabular format where we will draw a table in the class inside, where we will write all the four opinions together, where we will identify there is a difference in only one or two lines, and then everything is going to be the same. So when we draft the opinion para will be divided in four lines. How many lines? Two lines will always remain the same. It is only two lines which will keep on changing. In those two lines also only there are one or two words which will keep on changing. So rather than studying opinion, how do we draft the opinion para from here? We will cover all the four opinion para together. So this particular point is not discussing further. Okay. So what are the contents of the auditor's opinion? First, we will obviously write opinion. But along with opinion, what we will write is date notes. What is date notes? E is date, A is auditing, T is title, E is editing, and lastly notes. When expressing an unmodified opinion on the financial statement, in accordance with compliance framework, which framework? The auditor's opinion shall be that the accompanying financial statement are prepared in all material respects in accordance with AFRF. If the reference to the AFRF in the auditor's report is not to the accounting standard, auditor's opinion shall identify the origin of the framework. So if it is not as per the accounting standard, we will have to specify that what is the AFRF. Okay, so this point is not very relevant. We can remark R. What is R? Here you will not memorize this. Okay, so there are three paragraphs that we studied so far. First one was title. What is title? Title is always going to be what? Independent auditor's report. The title what we will write is address. It can be your members or the board depending upon the scenario. Then we will write the auditor's opinion. Under auditor's opinion, first we will write opinion. After opinion, what we will write is date notes. What is date notes? D is date, A is audited, E is title, E is editing, and lastly is notes. Next is basis for opinion para. Basis for opinion para, what we are going to write is CR. Yeah, what we are going to write is CR. So firstly, what we mean by CR? Firstly, S,
state that the audit was conducted in accordance with standards of audit. The audit was conducted in accordance with what? So whenever we give an opinion, we need to give a basis. On what basis are we going to give this opinion? So we need to state that it was conducted in accordance with what? Standards of auditing. We need to write that we have obtained sufficient and appropriate audit evidence. Because if we do not have sufficient and appropriate evidence, can we express an unqualified opinion? No. So we need to state that we have signed. What do you mean by sign? Sufficient and appropriate audit evidence. I say we will state that auditor is independent. The auditor is, and he also meets with the ethical requirement. Now you are aware with what are the ethical requirements? There are 5 ethical requirements. Integrity, professional, confidentiality, and lastly, professional behavior. So we will have to state here that we are independent. We also comply with the ethical requirements and fulfill ethical responsibilities in accordance with this. The statement shall refer to the code of ethics issued by ICAI. So these ethical requirements are prescribed by ICAI, which are nothing but these 5 fundamental principles. So we'll have to write a statement that we are independent. We also comply with what ethical requirements. So firstly from S, what we stated that audit has been conducted in accordance with standards of auditing. S2 we stated that we have what side. I say we stated that we are independent. We also comply with the ethical requirements. And with S, the auditors refer to the section of the auditor's report that describe auditors' responsibilities and responsibilities. Okay. Now we are just giving what a reference. Yeah, we are giving what a reference to the auditor's responsibility under the Excel. So we are going to describe that we have conducted our audit in accordance with our responsibility. Yeah, we have conducted audit in accordance with our responsibility. So responsibility, auditor's responsibility will be given in the report itself. So we are just giving a reference to the report. Yeah, we are just giving a reference. So when we talk about auditor's responsibility, there we have multiple options. How can we describe auditor's responsibility? One option, you write in the report itself. Yeah, one option you write it in the report. That is what we follow in India. We will always give in the report. Second option, however, we can give an appendix. Can we give an annexure to the audit report, a different supplement where we are writing what is the auditor's responsibility. Third, wherever it is perfected, if the auditor's responsibility is already stated on some regulator's website. For example, let us say SEBI is governing us, RBI is governing us. On their website, they have already stated what are the auditor's responsibility. We can just give a reference to that particular website. So while we are giving a responsibility, we have 3 options. Either include in the audit report itself what is our responsibility. Second, we can attach an appendix or annexion. Or third, we can give a reference to our website. So here what we do is we are just referring to the section of the auditor's report. We are referring to the that describe the auditor's responsibility. So in our whole report, wherever we are giving auditor's responsibility, we are referring to that section. Yes, we have written our auditor's responsibility that there we have conducted our audit in accordance with both those responsibility. So whenever we give basis for opinion, what we are going to add there is CR. What is CR? S is H2S. We have sign. I say we are independent as well as we comply with the ethical requirements. And lastly, A is okay. So this is what basis for opinion. So first we wrote title. After title we wrote addressee. After addressee we wrote auditor's opinion. Under auditor's opinion we wrote opinion plus reports. And under basis for opinion we wrote. Okay. So far everyone has understood. Next point is going concern. So going concern, we still need to discuss under 570, but I assume a lot of few basic concepts you are already aware from interest here. So we will go ahead with this point. We need to write in case if there is an impact on the going concern, in which paragraph? Going concern paragraph. So where applicable, auditor shall report in accordance with 570. Now they are giving just a brief about 570. 570 deals with auditor's responsibility in audit of financial statement related to the going concern and implications for the auditor's report.
The auditor's responsibility are to obtain, cite, regarding, and conclude the appropriateness of the management's use of going concern, preparation of financial statement, and conclude based on the evidence obtained whether material uncertainty exists. So, in case if there is a material uncertainty, if there is a material uncertainty, also we need to report it here. Under which paragraph? Going concern paragraph. So, for example, let us say if going concern is inappropriate, if going concern is and management is not adjusted the same. If going concern is inappropriate, then in that case they need to restate everything from book value to which value? Realizable value. They should state everything from non-current to what? Current. And they should give a description. But however, use of going concern basis of accounting is inappropriate. So they are trying to say that they have not followed this. In this case, we will always give an adverse opinion. Okay, because matter is material as well as purpose. Use of going concern accounting is appropriate, but a material uncertainty exists. What exists? Material uncertainty. So in this case, since going concern is not inappropriate, so we need not bring everything from book value to realizable value or non-current to current, but there is a material uncertainty. Whenever there is a material uncertainty, we will request the management to at least disclose the material uncertainty. Can you at least disclose the material uncertainty? So यहाँ पे we are requesting that you just they provide a disclosure. So adequate disclosure of material uncertainty is made or adequate disclosure is not. See, why are we requesting for disclosure? We just want to reduce the risk. See, right now, so there is an uncertainty. For example, let us say I'm teaching you a topic. I think so under car work, there is a possibility that they might ask you clause number 11. There is a possibility they might ask you clause number 14. But I did not tell you that. Okay, when the examination paper came out, after that I informed the students I was always thinking they will ask clause 11 and clause number 14. So in that case, what we tell you is sir, even if you have some doubt, even if you have some hint that they are going to ask us such a question, you should have informed us. So you are also, when we know there is a doubt on the going concern, we are still not sure. The user from the financial statement will expect us that we should at least inform them about the doubt that there is a doubt on the going concern. So we are requesting that your accounting will go on as an, what do we do earlier. But at least you should provide a disclosure. If they provide a disclosure, we will give a unmodified only. We will give a, but we will give material uncertainty related to going concern under this particular paragraph. So my opinion will be unmodified. But however, I will write this under the going concern paragraph. But if management does not modify, I mean management does not provide a disclosure, then I will have to give a qualified opinion or a adverse opinion depending on the circumstances and mention in the basis of opinion para. This time I need not write it well in the going concern para because when I modify the opinion, I'm going to write that there is a doubt on the going concern which the management has not disclosed. So I will keep this going concern para where there is an uncertainty and management has disclosed that particular uncertainty. Lastly, management is unwilling to make or extend its assessment. So management is unwilling to make an assessment and inform us whether the going concern is appropriate or whether the going concern is inappropriate. Here we will have to consider the implication of the report. This we will discuss when we go to what Excel 570. So for now, all you need to remember is in case if there is a material uncertainty, management has given the disclosure. We will show this under which paragraph? Going concern. Rest of the things we are going to discuss when we go to 705 and 570. Okay? So for exam point of view, going concern map, all you need to remember is this particular point. Okay? So if there is a material uncertainty, they are given a disclosure. We will write the same under the going concern. For next point, right? Reform. The same 570. So this topic we will discuss, and it is as it is where it is copy pasted when we go to what? Say 570.
उसके बाद सारा यूनियन बनाया जा रहा है, ये खत्म कर लेते हैं। So next is key audit matter. What is the key audit matter? We have already discussed under 701. Few students we are still to complete. We will complete it in the coming lectures. So 701 is a key audit matter. So if there is a key audit matter, we will write those key audit matter under which paragraph? Key audit matter. Okay, so I'm not discussing much here because this is covered in detail under which standing 70. So once again, what did we give first to us? Title. Title will always be what? Independent organization. After title, what will give us? Addressee. Addressee will be to the members or to the board depending on the circumstances. Then we will give auditor's opinion. Under auditor's opinion, we will always give one opinion. Plus what we will write is date. So what is date clause? D is date. A is auditor. E is title. E is entity. And lastly refer to the. Next of the basis for opinion para, what we will give is CR. What is CR? Standards of auditing. S2 से side, I से independent and independent plus ethical requirement, and lastly A से refer to the auditor's responsibility section. Next, after basis for opinion, what will give us going concern para. If there is a material uncertainty, we will add this under the going concern para. Next, we will give what? Key audit. So let us take a short 5 minutes break and continue. सो अपन ने सबसे पहले क्या चालू किया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव्स वाला बाद में वापस एक बार रिवाइज करते हैं। रिपोर्ट से अपन ने चालू किया। रिपोर्ट में सबसे पहले अपन ने क्या किया? टाइटल। टाइटल में हम हमेशा क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। टाइटल के बाद क्या आएगा? वो डिपेंड करता है कि मेरा रिपोर्ट किसको जा रहा है, या तो किसको जा सकता है मेंबर्स को, या तो किसको जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा किसको जाएगा? ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन में ऑब्वियसली मेरे को लिखना पड़ेगा मेरा ओपिनियन, पर ओपिनियन के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेट। कि इसका डेट लिखो, कौन से पीरियड में ऑडिट हुआ। ई से क्या लिखो? ऑडिटर। टी से क्या लिखो? टाइटल। ई से क्या लिखोगे? एंटिटी। और फिर किसका रेफरेंस दे दोगे? नोट्स। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल लेटर से कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, तो वहां पे हमें सिर्फ वहां पे क्या कर देना चाहिए? लिख देना चाहिए कि कौन से लॉ एंड रेगुलेशन, कौन से ए5 के हिसाब से। बेसिस फॉर ओपिनियन में मेरे को क्या देना पड़ेगा? सिया। क्या देना पड़ेगा मेरे को? सिया में मैं सबसे पहले एस से लिखूंगा कि मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से किया है, मतलब स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के हिसाब से किया। एस2 से मेरे को लिखना पड़ेगा मेरे पास क्या है? साई। अगर मेरे पास साई नहीं होता तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता। आई से मैं बोलूंगा मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई भी कर रहा हूँ। और ए से मैं किसका रेफरेंस दे दूंगा? ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। पूरे रिपोर्ट में जहां पे भी ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी उसका मैंने एक सिर्फ क्या दे दिया? रेफरेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न पैरा तभी आएगा जब मटीरियल अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने उससे क्या कर दिया है? डिस्क्लोज। वरना बाकी की सारी चीजें कौन कवर करेगा? इससे 705। अब नेक्स्ट हमारा आता है की ऑडिट मैटर। और ठीक है, तो की ऑडिट मैटर 70। नेक्स्ट इज अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन के लिए भी मुझे नया पूरा स्टैंडर्ड है, 720। कौन सा स्टैंडर्ड है? व्हाट इज अदर इंफॉर्मेशन? हमारा जो एनुअल रिपोर्ट जाता है, क्या हमारा जो क्या जाता है? एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के जो भी चीज, वापिस एक बार, क्या मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के जो भी चीज होती है उसमें हम कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा और एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर तुम देख लो जो हाईलाइटेड है, जिससे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कहते हैं सारे, उसको छोड़ के जो भी है सब लोग डायरेक्टर रिपोर्ट है, फीजिबिलिटी का फ्रेमवर्क है, या बाकी कोई और चीजें है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो भी अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं, बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सबको हम क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? सो अब यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स स्टेबिलिटी को बना दी, पर लेकिन आज बहुत सारी दूसरी कंपनी है जिन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया? एनुअल रिपोर्ट। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, पर वो लोग ने यहाँ पे मिसलीडिंग चीजें डाली। फॉर एग्जांपल लेट अस से एक्चुअल प्रॉफिट लेट अस से इज 31,000, कितना है? पर वो लोग ने यहाँ पे 51 देने के बदले 41 दिया।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? 30। मेरा ओपिनियन तो क्या हो गया? 2 अब उसने 30 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की क्या एनुअल रिपोर्ट में? अब यूजर्स तो आजकल क्या करते हैं, मतलब वो बचपन से स्कूल में जाते हैं, तब से अपने पैसा वो ब्लैक एंड व्हाइट लिखते हैं, कलरफुल बुक्स बनाती है। तो पब्लिक क्या करता है, इसमें कलरफुल दिखता है, ऊपर अलग अलग ग्राफ दिए रहते हैं, वही पढ़ता है, नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जाता है, तो उसने यहीं से प्रॉफिट पढ़ के समझ लिया कि फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। अब गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई या दूसरी इंफॉर्मेशन की? बट लेकिन मेरा ओपिनियन तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो तुम्हें इंटरेस्ट ये का ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? वो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई अलग? तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो कुछ कहा गया ना, आईसीएआई फाइनली रियलाइज कि भाई यहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक नया नया स्टैंडर्ड दे दिया, एसएस 720। क्या दे दिया उन्होंने? तो हम 720 के हिसाब से अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ रिपोर्ट हुई, क्या रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे डिटेल में 720 में, उसको हम देखेंगे। क्या समझा होगा? तो पहले मैंने क्या दिया? टाइप। फिर क्या दिया? एडिशन बोल दिया। पहले क्या आएगा? टाइटल के बाद क्या आएगा? एड्रेस के बाद क्या आएगा? ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन में ओपिनियन प्लस क्या आएगा? एक क्या आएगा? टी से टी से टी से आईटी का आईटी और फिर क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? क्या आएगा? बेसिस पर ओपिनियन क्या था? सीएम। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? क्या आएगा? पीओडी मैटर। पीओडी मैटर के पहले कौन सा ही पैराग्राफ आएगा? वही मैटर। ठीक है, वहां पे मटेरियल इंसर्ट की है, यूज किया है। फिर उसके बाद की ऑडिट। की ऑडिट मैटर के बाद कौन सा आ गया? अदर। यहाँ तक समझ। अब आता है कि भाई यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है या मैनेजमेंट की? तो हमें यहाँ पे मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी, हम हमारी जिम्मेदारी के ऊपर आई, तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हेडर देंगे हम यहाँ पे पैराग्राफ? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द financial statement. The auditor's report should use the term that is appropriate in the context of the legal framework applicable to the entity and need not refer specifically to what management. In some entities, appropriate reference to the established governance. अल्फा अभी लोग क्या बोल रहे हैं? समझो, मेरा रिपोर्ट ऑफ क्या सिर्फ एक कंपनी में जाता है क्या? नहीं, कोऑपरेटिव में भी जा सकता है, सोल प्रोप्राइटर को भी जा सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म को भी जा सकता है, वहां पे मैं मैनेजमेंट वर्ड समझ रहे हो? कोऑपरेटिव में क्या हो जाएगा? मैनेजिंग कमेटी हो जाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, पार्टनरशिप तो होगा तो पार्टनर्स हो जाएंगे। तो यही लोग क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, बट लेकिन तू जिस एंटिटी में ऑडिट करने जा रहा है उसके हिसाब से तू देख भाई, मैनेजमेंट वर्ड को चेंज करना पड़े तो उसको क्या कर देंगे? चेंज। तो नीचे की चीजें क्या रहेगी? सेम। संभालने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, तू पार्टनर हो गया या मैनेजिंग कमेटी हो गया या मैनेजमेंट हुआ, बट लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक वर्ड चेंज हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट के बदले पर और दूसरा सुटेबल वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लिख के रखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिया अपन ने? कोऑपरेटिव में क्या हो सकता है? हम क्या लिख सकते हैं? मैनेजिंग कमेटी। पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी में हम क्या लिख सकते हैं? पार्टनर्स। किसी को ऐसा खतरा तो नहीं लेना चाहिए, पर किसी को भी प्री कंडीशन ऐसा कुछ याद है? ऐसे कुछ क्या है? वेरी गुड। क्या थी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? वेरी गुड।
तो पहले हम सबसे पहले जो हमने बोला ना वही चीज यहाँ पे डालेंगे प्री कंडीशन में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, मैनेजमेंट। तो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with what AFRF and internal control as the management determines is necessary। मतलब एंटिटी के हिसाब से जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स बनाने चाहिए ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्यों बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल भी कौन बनाएगा, तो अच्छा गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं ये देखने की मेन जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैनेजमेंट की। क्यों, बिकॉज अगर गोइंग कंसर्न ही गलत हो गया तो भाई फंडामेंटल असम्पशन ही चेंज हो गया, तो उनके अकाउंटिंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो भले मैं अपनी 570 में प्रोसीजर लगा रहा हूँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो यहाँ पे बोलेंगे भाई तू असेस करेगा कि गोइंग कंसर्न सही है कि गोइंग कंसर्न सही नहीं है, तो गोइंग कंसर्न चेंज हो गया तो हमारी अकाउंटिंग के ऊपर इम्पैक्ट आने। तो टू असेस entity's ability to continue as a going concern and whether the use of going concern basis of accounting। See, going concern basis of accounting मतलब क्या, सारी चीजें कौन से वैल्यू के ऊपर है, बुक वैल्यू। तो क्या वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं है ये देखने की जिम्मेदारी थी। तो गोइंग कंसर्न ग्रेड सही नहीं है तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब कौन सी चीजों पे आ जाएगी, जो लिक्विडेशन वाली अकाउंटिंग होती है वो हो जाएगी। तो हमें बोल रहे हैं कि भाई गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मैनेजमेंट। फिर उसके बाद वहां पे हम नीचे है ना एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे जिस सेक्शन के बारे में आगे लिख दो वो। सो जहां जहां पे जिस कंपनी में दोष चार्ज विद गवर्नेंस है, या जहां जहां पे कंपनी में क्या है, हम वहां पे लिखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ओवरसाइट रखने की जिम्मेदारी किसकी है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस। ओवरसाइट रखना मतलब क्या रखना, देख रेख रखना, निगरानी रखना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall identify those responsible for oversight of the when those responsible for such oversight are different from those who fulfill the responsibilities described in the next paragraph। In this case, header हम क्या use करेंगे, those charged with governance or such other term that is appropriate in the context of the legal framework applicable to the entity। तो जैसे ऊपर मैनेजमेंट में तुमने नाम क्या कर दिया, चेंज, तो स्टाइल विद गवर्नेंस में भी शायद तेरे को नाम क्या कर देना पड़ेगा, चेंज। मतलब अब जहाँ पे मैनेजमेंट भी नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म में तो तू थोड़ी क्या कर, एलएलपी में हम काफी बार क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलएलपी में एक पार्टनर को क्या बनाया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल कोई वर्किंग पार्टनर होगा, कोई एक्टिव पार्टनर, कोई गवर्नमेंट पार्टनर होगा। तो जैसे लीगल फ्रेमवर्क चेंज होगा शायद गवर्नेंस का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज। पर लेकिन उनको एक सेक्शन डालना पड़ेगा कि ये पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर ओवरसाइट कौन रखेगा, दोस्त चाइल्ड गवर्नेंस बनाएगा मैनेजमेंट, पर ओवरसाइट कौन रखेगा, दोस्त चाइल्ड। When the financial statement are prepared in accordance with what? Fair presentation. What? Description of the responsibilities for the financial statement in the auditor's report shall refer to the preparation and the fair presentation of financial statement। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाया गया है, फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल है, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है तो कुछ नहीं, बट अगर फेयर प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे ये भी लिख देना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को किसके हिसाब से बनाएगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से। सो वापस एक बार, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट से लिखेंगे तो उससे क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की एज पर जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी थी। वही कंसर्न सही है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी थी। वही कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जिम्मेदारी थी। फिर अगर समझो फाइनेंशियल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट गवर्नेंस है तो अलग से सेक्शन लिखेगा कि पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर ओवरसाइट कौन रखने वाला है, उस चार्ज कौन रखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे है ना ये वाला जो पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट मैं एकदम सही कर दूँ। ठीक है, सो ये जो फेयर प्रेजेंटेशन वाला फ्रेमवर्क है वैसे हम वहाँ पे आगे नीचे ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी लेंगे, इसलिए हम कंसिडर करें यहाँ पे से। अब यहाँ पे हमने किसकी जिम्मेदारी लेनी है, मैनेजमेंट।
अब हमें ऑब्वियसली किसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमारी। मेरे को बताओ हमारी जिम्मेदारी क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन स्टैंडर्ड क्या चालू किया था, वी वांट टू ऑब्टेन एन एश्योरेंस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक ओपिनियन पहले फॉर्म करना है, और वही ओपिनियन को रिटर्न रिपोर्ट के द्वारा क्या करना है, एक्सप्रेस। तो मैं वही बोलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा वो तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट में याद हो तो ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 1 में आंसर आता है कि we want to obtain a reasonable assurance whether the financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud, एंड मैं उसी के ऊपर क्या इश्यू करना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट। तो इश्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट पर इंक्लूड द ऑडिटर। पर मेरे को बताओ, क्या रीजनेबल एश्योरेंस मतलब मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं। क्या अपने को पता है, क्या हर एक यूजर को पता होगा क्या। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे सिद्धांत है कि मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ। तो रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ क्लैरिटी, इट इज नॉट अ। ठीक है, तो हम वहां पे बहुत लेमैन लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि यूजर जो भी है वो क्लैरिटी से समझे कि मैंने ओपिनियन दिया है तो रीजनेबल एश्योरेंस है, क्या वो गारंटी दिए हुए हैं क्या करता है। तो स्टेट दैट द रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट it is not a guarantee that audit conducted in accordance with essays will detect material misstatement within exist। तो हो सकता है कि कोई ना कोई मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाए। क्या समझा होगा पक्का। तो हम लोग ने क्या बोला, स्टेट दैट रीजनेबल एश्योरेंस इज दिस लेवल ऑफ एश्योरेंस, but it is not a guarantee that audit conducted in accordance with the will always detect a material misstatement। क्या यहाँ तक टॉपिक को समझे। सो वापस एक बार हम लोग ने क्या बोला, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और सिंपल कि हमें क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर व्हाट फ्री फ्रॉम। फिर हम उसके ऊपर क्या इशू करना चाहते हैं, फिर स्टेट में रीजनेबल एश्योरेंस कौन से लेवल का एश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बड़ी गारंटी। वहां पे लिख दो कि मिस्टेकमेंट अराइज हो सकती है, क्या मिस्टेकमेंट क्या हो सकती है, अराइज। तो अब मैं वहां पे उन लोगों को बता रहा हूँ कि मिस्टेकमेंट क्या हो सकती है, मटीरियल क्या हो सकती है। तो डिस्क्राइब द स्टेटमेंट में मटीरियल या तो इंडिविजुअली और एक मटीरियल। तो यहाँ पे मैं पूरा लोगों को क्या समझा रहा हूँ, मटीरियल क्या समझा रहा हूँ मैं लोगों को, कि चीजें इंडिविजुअली ना मटीरियल हो सकती है अगर वो यूजर का डिसीजन क्या कर देता है, इन्फ्लुएंस। तो वहां पे मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ मटीरियल एक अमाउंट नहीं है, मटीरियल की हर वो चीज है जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन क्या हो गया, इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल लेट अस से, समझो अंबानी जी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ है, वहां पे अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का कोई मिस्टेक हुआ, क्या वो अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मटीरियल है क्या। 1 लाख करोड़ के सामने क्या 10 करोड़ बहुत मटीरियल है क्या, नहीं। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है और 10 रुपीज गया तो कोई बहुत बड़ा मटीरियल है। पर अगर अंबानी जी ने 10 करोड़ का जीएसटी पे क्या नहीं ले लिया, तो अब ये मैटर क्या हो जाएगा, मटीरियल। मतलब तू क्या सोचेगा भाई, इतना पैसा है दुनिया भर के, भाई यहाँ पे तुम फिल्म स्टार को बुला के शादी कर रहे हो, पर लेकिन गवर्नमेंट का 10 करोड़ रुपया तुम पे कर रहे नहीं हो। तो मतलब दो चीज, या तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, झूठा मोटा बता रहे हो, या तो भरने की नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो तुम चाय पीने गए, तुम्हारे एक दोस्त होता है जो दुनिया भर की स्टाइपेंड मारता है कि मेरे पास स्टाइपेंड मिलता है, ये है वो है, पर जब 10 रुपया चाय का देने का आता है, वो चाय रुपया 10 रुपया देता है क्या, नहीं। तो उसको जज करते हैं कि दो में से एक चीज है, या तो बड़ी बड़ी फेंक रहा है कुछ पैसा नहीं है, या तो पैसा है पर भरने की नियत नहीं। दोनों केस में वो इंसान को क्या करते हैं, जज। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, चीजें मटीरियल है, क्या चीजें क्या है, मटीरियल। अगर वो यूजर का डिसीजन, मतलब किसकी बात चल रही है, किसी की कॉमन बात चल रही है, कौन नहीं दे रहा तुम बस रुपए में। अच्छा इधर बैठा है, अच्छा ऑनलाइन मैं म्यूट करता हूँ। देख सुनाई देगा तेरे को, बैठा ही इधर, बोलो बोलो उसको। अच्छा ऐसा मेरे को लगा तेजस से पैसा पकड़ मैं बोला तेजस कौन मिल रहा है। सो वापस यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, हम चीजों बता रहे हैं उनको कि क्या मटीरियल है, इंडिविजुअली या तो ये ना, क्या मटीरियल है अगर वो यूजर का डिसीजन क्या कर देता है। काफी बार है ना, लॉ हमें कह देता है व्हाट इज मटीरियल, एएफआरएम के अंदर ही लिखा होता है व्हाट इज मटीरियल।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जाए, वो कहता है हमारा जो भी ग्रॉस इनकम है उसका 1% जो भी है वो मटेरियल। तो अगर एएफआरएफ के अंदर ही डिफाइन किया गया, डिस्क्रिप्शन किया गया व्हाट इज मटेरियल, तो मैं वो भी यहाँ पे बता दूंगा। तो प्रोवाइड अ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ इन अकॉर्डिंग विद द एएफआरएफ। तो अगर एएफआरएफ में क्या दिया गया है, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है, तो मैं उन लोगों को लिख के दे दूंगा कि भाई देखो एएफआरएफ कहता है कि ये चीज क्या है, मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, वो सबका लेना देना नहीं है, मटेरियलिटी डिफाइन किया गया है, तो क्या है। तो मैंने यहाँ पे पहले पार्ट सी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 पार्ट, आपका टोटल पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या बोला, हमारा काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे क्या चाहिए, क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल एश्योरेंस, और उसी को इशू करना है थ्रू अ रिटर्न। फिर उनको बताना है रीजनेबल एश्योरेंस कौन से लेवल का एश्योरेंस है, हाई लेवल एश्योरेंस, पर वो गारंटी। तीसरा उनको बताया है कि चीजें मटेरियल हो सकती है, कैसे, इंडिविजुअल या एग्रीगेट, अगर वो यूजर का जो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस। और अगर एएफआरएफ के अंदर क्या दिया गया है, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, तो वो भी मैं वहां पे यहाँ तक समझे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे को वहां पे सेकेंड पार्ट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या लिखना है। डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप एंगेजमेंट एज पर 600। तो अगर ग्रुप ऑडिट है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, तो हर एक ऑडिटर की अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो अगर मैं ग्रुप ऑडिट का हिस्सा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सेकेंड, डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को और इलैबोरेट करूंगा। हम क्या बोलेंगे, हमारी और जिम्मेदारियां क्या है, या तो क्या बोलेंगे, आई से सॉरी आर से आइडेंटिफाई द आरओएमएस। क्या आइडेंटिफाई व्हाट, ठीक है। तो आरओएमएस ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी। ये थोड़ी मैनेजमेंट ढूंढेगा, ये कौन करने वाला है, ऑडिटर। सेकेंड, obtaining an understanding of the internal control। तो इंटरनल कंट्रोल भले तुम बनाए, बट आई विल obtain an understanding, तो उसी से मेरे को क्या पता चलेगा, कंट्रोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट ए से इवेल्युएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ, पढ़ो यहाँ पे से, इवेल्युएटिंग द appropriateness of what related disclosures to conclude the management appropriateness of made by management. Next, reasonableness of the paid estimates and the accounting policies। तो यहाँ पे मेरे को अप्रोप्रिएटनेस के बारे में मैं 3 चीजें की अप्रोप्रिएटनेस चेक करूंगा। पहले डिस्क्लोजर की, फिर उसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट की, और उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, किसकी बोला मैंने, डिस्क्लोजर की, अकाउंटिंग एस्टिमेट की, और अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये जिम्मेदारी मेरी है। तो आर से क्या बोला अपन ने, आरओएमएस। आई से क्या बोला अपन ने, इंटरनल। और एक से इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट जी से टू कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ वर्क। तो कोई कंसर्न सही है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी भी किसकी है। फिर उसके बाद इवैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। क्या इवैल्यूएट द, तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं, एएफआर के हिसाब से कि नहीं, फॉर्मेट बराबर है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी भी किसकी, वापस बनाएगा मैनेजमेंट। पर मैं क्या करूंगा, इसे इवैल्यूएट करूंगा। फिर उसके बाद मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, मेरा प्रोफेशनल चेक, क्या यूज करना पड़ेगा, मेरा प्रोफेशनल। और मैं क्या मेंटेन करूंगा, प्रोफेशनल कैपिटल। व्हाट इज प्रोफेशनल कैपिटल, अलर्ट रहना। देखो हमेशा ऑडिटर को क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग माइंड का रहना पड़ेगा। तो जब भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आएगा, हम इसको कैसे याद रख लेंगे, ऑडिटर इज द अन्ना हुज ऑलवेज टॉकर। क्या बोलेंगे अपन, ऑडिटर इज द अन्ना हुज ऑलवेज टॉकर। मतलब आपको क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा और क्वेश्चनिंग माइंड का। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी क्या है, ऑडिट की क्या जिम्मेदारी है, मैं बताता हूँ। मैंने मेरी और जिम्मेदारियां होंगी, मैं समझा दिया दिया। आर से आई से obtain an understanding of the internal control। B से evaluate the appropriateness of DD, disclosure, accounting estimates और accounting policies। तो इन चीज को कोई कंसेप्ट सही है कि नहीं देखने की जिम्मेदारी मेरी। ओवरऑल प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर क्लियर है देखने की जिम्मेदारी क्या है, अगर टॉपिक को समझो। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में डाला गया है। ठीक है, तो वहां पे
जो ऊपर अपन ने चार्ट पढ़ा ये सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे याद करो हमने क्या बोला, वहाँ पे क्या रखना है, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर बाद में तय करो कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या ढूंढना, एविडेंस। फिर बाद में ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। फिर इवैल्यूएट क्या करना, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर उसके बाद क्या देखना, क्या सही है गोइंग कंसर्न। और लास्टली क्या देखना है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड द स्ट्रक्चर। फिर बाद में अगर वहां पे ग्रुप ऑडिट है इस पर से 600, तो ग्रुप ऑडिट में क्या जिम्मेदारी समझ सकते हो। ऊपर मैंने जो चार्ट डाला है वो ही है, बट लेकिन ये इतना सा मैं काफी बार स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, इसलिए अपन ने क्या बना के रखा है उसका चार्ट, ठीक है। तो दो दो बार में ही लिखना है एग्जाम में, दिस वन सिंगल बार। क्या यहाँ तक समझे। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब तक मेरे सिर्फ दो पार्ट हुए, कितने पार्ट हुए। पहला पार्ट में हमने क्या बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस, और उसी को इशू करना है थ्रू और रिटर्न। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने वहां पे बोला रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, पर लेकिन वो कोई गारंटी नहीं। फिर बाद में चीजें मटीरियल हो सकती है, ऑन एन एग्रीगेट, अगर वो यूजर का डिसीजन क्या हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पर मैंने क्या बोला, क्या डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। फिर बाद में हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप ऑडिट में हमारी क्या जिम्मेदारी है, फिर हम क्या बोलेंगे हमारी और जिम्मेदारी है क्या है, रिया को क्या है, रिया को आर से आई से। अभी ध्यान है तेरा इधर, क्या आएगा आर से, आई से क्या आएगा, ए से क्या आएगा, अब द अकाउंटिंग पॉलिसी। चीजों का चेक करेंगे, डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग एस्टिमेट, दूसरा टू कंक्लूड द, और लास्टली ओवरऑल प्रेजेंटेशन। फिर स्टेट दैट अपार्ट फ्रॉम द, मतलब ये पूरी चीज ऊपर की है, सिर्फ अब इस चीज में डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा पार्ट, हमें किसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उस शायद ठीक है। अब मैं वहां पे क्या बोल रहा हूँ, देखिए मेरे को है ना पूरी चीज है इसके साथ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ये जो अगले दो पॉइंट पड़ गए, ये डिटेल में ऐसे 260 एंड 265 हो गए। और क्या करते हैं, 260 एंड 265, ये लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेट दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। तो हम वहां पे रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि भाई देखो मैंने दोस चार्ज विद गवर्नेंस को क्या क्या बताया, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, क्या बताया। अच्छा मतलब मेरे को बताओ मैं अपना पूरा प्लानिंग स्कोप टाइमिंग मतलब पूरा ऑडिट प्रोग्राम उनको दे दूंगा क्या, तो क्या होता है इस लेवल पे है ना, तो उनसे क्या डिस्कस करते हैं पता है, द रिस्क, क्या डिस्कस करते हैं। मुझे से प्लान स्कोप एंड टाइमिंग मतलब मैं मेरा पूरा प्लानिंग देने वाला नहीं हूँ, मैंने मेरा पूरा ऑडिट प्रोग्राम ही दे दिया, मेरा पूरा ऑडिट का भाई वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो मैं प्लान स्कोप एंड टाइमिंग के बेसिस के ऊपर क्या करूँ, क्या उनको कम्युनिकेट करना हो, रिस्क क्या है। तीसरा मैं उन्हें क्या दूसरा उन्हें क्या बता रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो मैंने जो भी प्रोसीजर्स बनाए अलग अलग एरियाज में, मेरे को क्या क्या फाइंडिंग्स, इंटरनल कंट्रोल के अंदर मेरे को कोई डेफिशिएंसी मिली तो वो भी मैं उनको बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे उन्हें तीन चीजें बता रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, दूसरा उन्हें मैं क्या बता रहा हूँ, डेट फाइंडिंग, और तीसरा मैं क्या बता रहा हूँ, डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, वापस एक बार क्या बताया मैंने, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, फिर क्या बताया मैंने, ऑडिट फाइंडिंग्स एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। तो ये मैंने किसको कम्युनिकेट किया, शामिल करो। सेकेंड मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, स्टेट दैट द ऑडिटर प्रोवाइड्स डिस्चार्ज विद गवर्नेंस अ स्टेटमेंट दैट, मतलब अब मेरे को डीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहा हूँ रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। तो मैं लिखित में किसको बता रहा हूँ, ये डीसीडब्ल्यूजी को, कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहा हूँ इंक्लूडिंग व्हाट, इंडिपेंडेंस। Communicate with them all the relationship and other matters that reasonably be thought to bear on the auditor's independence where applicable the related safeguard. So अगर for example मैं बता रहा हूँ कि मैं independent हूँ, ethical requirements comply कर, पर लेकिन यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि भाई auditor should be independent by mind, also appear to be independent। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप्स है जिसकी वजह से टेक्निकली मेरे इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा नहीं।
पर लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, मेरे को ये किसी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए कम्युनिटी, या तो मेरे इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट्स, क्या है थ्रेट्स, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, थ्रेट्स को कम करने के लिए मैंने भी सेफगार्ड लगाया, क्या लगाया हुआ है? तो मैं वो सेफगार्ड में लोगों को कम्युनिकेट करना, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी लिया था सब, जो मेरे फॉर्म में हम लोग के पास एग्जाम्पल मेरे से दूसरी कोई रिलेटेड सर्विस दी है और हम लोग ऑडिट भी करें, क्या करें हम लोग ऑडिट भी। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है सेल्फ रिव्यू रहेगा, क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमारी फॉर्म में खुद से बना, एक टीम क्या करेगी रिव्यू, और एक टीम क्या करेंगे रिलेटेड सर्विस, और एक टीम क्या करेगी ऑडिट। जैसे ईवाई ने किया था थोड़े टाइम पहले, अगर तुम्हें याद हो तो वो ईवाई ने 1.5 साल पहले ना रिस्ट्रक्चरिंग किया, उन्होंने अलग अलग बना दी कि एक टीम क्या करेगी, मतलब एक फॉर्म कंसल्टेंसी देगी और दूसरी फॉर्म क्या करेगी ऑडिट, जब प्रोडक्ट नेक्स्ट क्या हो जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मैंने किया है तो मैं टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दूंगा कि देखो यहाँ पे ऐसे फ्रेश टू इंडिपेंडेंस थे, जिसके लिए उन्होंने ये क्या लगा दिया हुआ है सेम। तो मेरे को टीसीडब्ल्यूजी को बताना है कि भाई मैं डिपेंडेंट हूँ, एथिकल रिक्वायरमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, अगर समझो कोई रिलेशनशिप है या दूसरे मैटर से जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है मैच आ सकता है, तो मैंने क्या सेफगार्ड लगाया वो क्लियर को, जहां पे भी लिस्टेड एंटिटी या जहां पे भी क्या है, वहां पे मेरे को दोस्त स्टैटिक गवर्नेंस के साथ की ऑडिट मैटर भी डिस्कस करने पड़ेंगे, क्या डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये की ऑडिट मैटर का डिस्कस करते हैं, पूरा कहाँ पे कवर किया गया है 701 में। तो फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटीज, फॉर सच एंटिटीज को यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखो, लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। बस एज ऑफ नाउ इंडिया में ये मैंडेटरी सिर्फ लिस्टेड एंटिटी को है, फॉर व्हिच की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस्त चाइल्ड विद गवर्नेंस। तो यहाँ पे मैं उनको क्या कम्युनिकेट करने वाला हूँ की ऑडिट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में मैंने दोस्त चाइल्ड विद गवर्नेंस को पहले तीन चीज कम्युनिकेट की, क्या कम्युनिकेट की, लाइन स्कोप एंड टाइम, दूसरा क्या कम्युनिकेट किया सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, तीसरा क्या बताया डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, दूसरा मैंने उनको बताया मैं इंडिपेंडेंट हूँ और क्या अप्लाई कर रहा हूँ एथिकल रिक्वायरमेंट। कोई रिलेशनशिप्स है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हमें लग रहा है थ्रेश टू इंडिपेंडेंस है, तो मैंने जो सेफगार्ड लगाया वो भी मैंने उनको कम्युनिकेट कर दिया। लिस्टेड एंटिटी में मैंने उनको साथ ही साथ क्या दे दिया की ऑडिट, क्या दे दिया मैंने उन्हें, ठीक है। चलो तो देखो मेरे को बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया रिपोर्ट, टाइटल दिया, टाइटल के बाद क्या दिया, एड्रेस ही दिया, एड्रेस ही के बाद क्या आ गया ऑडिटर्स ओपिनियन। अच्छा ऑडिटर्स ओपिनियन में हम क्या लिखते हैं ओपिनियन, प्लस क्या लिखते हैं, अच्छा क्या होता है टी से, ए से, टी से, बी से, और फिर नोट्स, बेसिस फॉर ओपिनियन में हमने सीधा लिखा, एस से क्या फर्स्ट टू से, फिर उसके बाद आई से इंडिपेंडेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ए से ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी का एविडेंस, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कोई कंसर्न पैरा, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज भी की हुई है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा ये ऑडिट मैटर, और उसके बाद क्या आ जाएगा अदर, अब ये सारी चीज के बारे में देखो, इसकी डिटेल चर्चा 570 में, इसकी डिटेल चर्चा 701 में, इसकी डिटेल चर्चा 720 में। उसके बाद हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम, क्या लिखेंगे वहां पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाना, एएफआरएफ के हिसाब से, किसके हिसाब से बनाना, एएफआरएफ के हिसाब से। सेकेंड वहां पे हम लोग को क्या बोलना है कि भाई प्लस इंटरनल कंट्रोल भी कौन बनाएगा, तो वही कंसर्न सही है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी किसकी मैनेजमेंट की, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट। तीसरा अगर पोस्ट गवर्नेंस है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर ओवरसाइट मतलब देख रेख कौन रखेगा, दोस्त ट्रैफिक। तो उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नंबर 1 में हमने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए कि रीजनेबल एश्योरेंस, क्या चाहिए हमें, प्लस हमें क्या इशू करना है एक, फिर हम लोग ने बोला कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस तो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, पर लेकिन क्या वो गारंटी है क्या, तीसरे हम लोग ने बोला चीजें क्या हो सकती है मटीरियल कैसे इंडिविजुअली या तो इन
एग्रीगेट, अगर कोई यूजर का डिसीजन क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस। अगर AFRF के अंदर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कोई डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, हमने उसका भी जिक्र वहां पे करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेकेंड पार्ट में हम लोग ने क्या बोला कि भाई हम वहां पे क्या रखेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट प्लस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मेरी और जिम्मेदारियां क्या है या, तो क्या है, आर से अवेयरनेस, आई से क्या है इंटरनल कंट्रोल, ए से क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या देखा अपन ने, डिस्क्लोजर, और फिर उसके बाद जी से क्या देखा, गोइंग कंसर्न, और ओ से क्या बोला अपन ने, ओवरऑल प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लोग ने क्या बोला कि वहां पे अगर ग्रुप ऑडिट है तो ग्रुप ऑडिट में हमारी क्या जिम्मेदारी। तीसरा पार्ट, हम दो स्ट्रक्चरल गवर्नेंस को क्या कम्युनिकेट करना है, प्लान स्कोप एंड टाइमलाइन, फिर सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। दूसरा PCWG को मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, प्लस क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर बाद में कोई सेफगार्ड्स लगाए तो मैंने उनको बताया। लास्ट में मैं PCWG को क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इन केस ऑफ डिजिटल एंटिटीज, अगर कोई भी ऑडिट। यहाँ तक सब साथ में समझाए पब्लिक को, यहाँ तक पक्का। सी ये सारे जो टॉपिक्स है ना आर इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट फॉर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक पैरा के ऊपर सवाल है, मतलब हर एक पैरा का अंदर का कंटेंट भी हमें याद रखना है। ठीक है, सो अंदर का टॉपिक जो ओपन ने बोला हुआ है सारे के सारे पॉइंट्स आर व्हाट इम्पोर्टेंट। क्या याद रख सकते हो, समझे। अब ये लोग बोल रहे हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहाँ पे दे सकता हूँ। तो अपन ने पहले ही डिस्कस किया था, मेरे पास 3 ऑप्शन, यही रिपोर्ट में दे सकता हूँ, यूजुअली हम क्या करते हैं यही रिपोर्ट में देते हैं। दूसरा मैं एक अपेंडिक्स लगा सकता हूँ या कनेक्शन लगा सकता हूँ। या तीसरा, अगर कोई वेबसाइट में अगर उसका रेफरेंस दिया हुआ है तो उसका मैं क्या दे सकता हूँ, उस लिंक का क्या दे दूंगा, रेफरेंस। तो लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर जानकारी चलना वाला होगा, इसके ऊपर सेपरेट सवाल आता है। तो the description of the auditor's responsibility for the audit of the financial statement required कहाँ पे आएगा, within the body of the auditor's report, within an appendix to the audit report in which auditor's report shall include a reference to the location। मतलब appendix दे रहे हो ना चलेगा, बट अपने रिपोर्ट में रेफरेंस दो कि भाई ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे लिखी हुई है, अपेंडिक्स में, तो वहां पे एक रेफरेंस देना कंपलसरी। तीसरा, by a specific reference within the auditor's report to a location of description of a website of appropriate authority where law, regulation or auditing standard expressly permit the auditor to do so। तो अगर वहां पे उन लोग के जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उन्होंने वेबसाइट पे दिया है तो हम उसका भी क्या दे सकते हैं, रेफरेंस। When the description of the auditor's responsibility on a website of an appropriate authority, auditor should determine such a description addresses and is not inconsistent with the requirement of the SC। तो भाई यहाँ पे सेट ऑफ रेफरेंस दे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरी जिम्मेदारी यहाँ पे कुछ और है और वहां पे तेरी जिम्मेदारी कुछ और। अगर वहां पे जिम्मेदारी कंसिस्टेंट है तो ही तो उसका क्या कर सकता है, रेफरेंस, वरना उसका रेफरेंस दे सकता। ठीक है, बट इंडिया में हम और फॉलो करते हैं, वी ऑलवेज गिव विद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो हम आज या कल जब भी टाइम मिला हम कंपनी के रिपोर्ट भी देखी है, वहां पे देखिए क्या होगा, इसके अंदर दिया गया बॉडी ऑफ द। तो यहाँ पे बॉडी को समझा। अब काफी बार लॉ भी तो हमें कहता है कि इसमें क्या लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट 143 143 में हमें पूरा लिस्ट देके रखा है कि हमें क्या करना है। For example, all the information and explanation which to the auditors believe were necessary. फिर whether proper books of accounts as required by law have been kept, whether the books of accounts are in confirmation, फिर बाद में whether it is done as per the accounting standard, बाद में eligibility of the director under section 164, अगर ऐसा कुछ दुंगा सब तो हमें लॉ भी क्या कहता है रिपोर्ट करना। वैसे हम बैंकिंग रेगुलेशन में जब जाएंगे वहां पे भी हमें दिखेगा लॉ कहता है रिपोर्ट। वो अगर जो सोसाइटीज एक्ट में भी लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना। तो 700 भी बोल रहा है रिपोर्ट करो, 9 भी बोल रहा है रिपोर्ट, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। बात बताओ, जो 700 में लिखा है आप कंसेप्ट फॉलो करेंगे, पर लॉ की रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन एसएसएम। क्या लॉ की रिक्वायरमेंट इज, तो अब मेरे को एक और पैराग्राफ ऐड, वापस एक बार
नौ भी कहता है रिपोर्ट करो, 700 भी कहता है रिपोर्ट करो। नौ अगर ऐसे 700 दोनों सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पर अगर लॉ की रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन 700, इसकी रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर, तो अगर लॉ की रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन एस एस 700 तो हम एक अलग से पैराग्राफ ऐड करेंगे। पैराग्राफ का नाम होगा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या आ जाएगा? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। So if the auditor addresses other responsibility in the auditor's report, then the financial statement that are in addition to the auditor's responsibility under SA मतलब कौन सा SA 7? These reporting responsibilities shall be addressed in a separate section in the auditor's report with a heading report on other legal and regulatory requirement or appropriate heading, unless other reporting responsibility address the same topic. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल लॉ और एस एस 700 सेम है तो भाई मेरे को ये कुछ देने की जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट आती कब है? जब लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? 7। ठीक है, एज दोस प्रेजेंटेड इन द रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी बाय द एसए, इन व्हिच केस द अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी विल बी प्रेजेंटेड इन द सेम सेक्शन एज रिलेटेड रिपोर्ट फॉर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द एसए। तो अगर दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है तो नथिंग इज टू बी डन। बट अगर दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है तो मेरा रिपोर्ट में एक और पैरा ऐड करूंगा, उस पैरा का नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। Now, if the other reporting responsibilities are presented in the same section as related report elements required by SA, auditor shall clearly differentiate other reporting responsibilities from the reporting that is required by SA. तो भाई तू भले ऐसे 700 को छोड़ के तू क्या करना चाहता है, कुछ और रिपोर्ट करना चाहता है, कर। हम मना नहीं कर रहे, ऐसे के अंदर ही प्रोविजन है कि भाई तुम और कर सकते हो, बट क्लियरली डिफरेंशिएट कर। तो इसके लिए हम अलग से हेडर दे रहे हैं, उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लॉ का एग्जाम्पल एक बार लिख लो, 143 ऑफ द कंपनीज। अब वहां पे दिया है, इसका नाम क्या रख सकते हो? तो भाई क्या लिख सकते हो? रिपोर्ट ऑन audit of financial statement, report on other legal and regulatory requirements, you follow the report on audit of financial statement। ठीक है, हम कौन सा यूज करते हैं? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर। क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर हमेशा कैसे होने वाला है? पर्सन नेम। कैसे होगा? क्यों? क्योंकि भाई वहां पे पार्टनरशिप या एलएलपी होती है, क्या उनका कोई कॉमन सील होता है क्या? नहीं। तो वहां पे साइन तो कैसे होगा? पर्सन नेम। अच्छा, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या करने का? पार्टनरशिप फॉर्म का नाम लिखने का और नीचे लिखने का फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से इनिशियल कंपनी का पार्टनरशिप फॉर्म, बट लेकिन सिग्नेचर नीचे तो कौन करेगा? पार्टनर। तो ऊपर फॉर्म का नाम लिखो, बट लेकिन नीचे साइन तो कैसे होगा? पर्सन नेम। सो यहाँ पे हमेशा साइन होएगा पर्सन नेम। वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? मेंबरशिप नंबर। क्या लिखना पड़ेगा हमें? मेंबरशिप नंबर। और फॉर्म है तो फॉर्म का क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्म रजिस्ट्रेशन। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी साइंड, द रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर इन हिज पर्सनल नेम, वेयर द फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, रिपोर्ट इज साइंड इन द पर्सनल नेम। मतलब फॉर्म है तो भी कैसे साइन होगा? पर्सनल नेम में। एंड इन द नेम ऑफ द ऑडिट फॉर्म, मतलब साथ ही साथ ऑडिट फॉर्म का नाम लिखो। The partner proprietor signing the audit report shall also mention the membership. Under section 145, read with 141(2) of the Companies Act, only person appointed as an auditor of a company or where a firm is so appointed, only partner or who is a chartered accountant may sign the report and sign or authenticate any other document. मतलब 145 क्या कहता है? जिससे अपॉइंट किया गया है ना, सिर्फ वो ही क्या कर सकता है? रिपोर्ट साइन कर सकता है, कोई और साइन कर सकता नहीं। 141(2) क्या कहता है? साइन कौन कर सकता है? अगर प्रोप्राइटर है तो वो खुद कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म में वो क्या बोला? क्या पता कि क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑडिट कर सकती है? यस, बट मेजॉरिटी पार्टनर शुड बी व्हाट? सीए प्लस सीओ। याद करो हम इंटर सीए में क्या एग्जाम्पल लेते थे? याद करो पीयूष गोयल जी थे, कुमार मंगलम बिरला थे और दिशा पटनी।
तो क्या दिशा पत्नी पार्टनर बन सकती है? यस, बट क्या वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकती है? तो तुम्हें से क्या याद रखना है, रिपोर्ट कौन साइन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कोई साइन कर सकता नहीं है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे क्या किया गया है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, साइन। ठीक है, नेक्स्ट वहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्लॉज 12 जो प्रोफेशनल एथिक्स में गया है, वहां पे भी हम लोग ने पढ़ा है कि जिसे अपॉइंट किया गया है वही साइन करेगा। अगर वो बंदा किसी और को अलाउ करता है टू साइन ऑन हिज बिहाफ, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो जिनका प्रोफेशनल एथिक्स बाकी हम ये करेंगे, बट लेकिन यहाँ पे बाकी सारे लोग पढ़ो, shall be deemed to be guilty of misconduct if he allows a person not being a member of the institute, not being a partner, to sign on his behalf or behalf of his। तो अगर मैं मेरे बदले किसी और को साइन करने देता हूँ तो आई विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। समझो क्लाइंट का हेड ऑफिस मुंबई में, ऑडिटर का हेड ऑफिस दिल्ली में, पर हम लोग ने रिपोर्ट कहाँ पे साइन किया है? तो प्लेस कौन सा है, कौन सा वाला आएगा? तो ऑडिटर का हेड ऑफिस किधर है, क्लाइंट का हेड ऑफिस किधर है, किससे कोई लेना देना? The auditor's report shall name a specific location which is ordinarily the city where the office is। क्या समझा आप देखो? लास्ट पॉइंट आता है डेट। वो लोग बोल रहे हैं जब तक हमें साइन नहीं मिला, या जब तक हमें क्या नहीं मिला, उसके पहले हम डेट डाल सकते नहीं। तो पहले सारा साइन ढूंढो, सारा साइन ढूंढने के बाद ही हम क्या लिख सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट का date। तो auditor report shall not be earlier than the date on which the sign has been put on which to base the auditor's opinion of the financial statement. All statements that comprise the financial statement, including what related notes, those recognized authority have asserted that we may have the responsibility to those financial statements। ठीक है, तो वहां पर डेट डाल देंगे, पर लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि डेट कौन सा होना चाहिए, नॉट अर्लियर विद द डेट ऑन व्हिच व्हाट इज बीन obtained signed। क्या समझा होने के लिए? यहाँ पे कोई बोल रहे हैं बी वाला पॉइंट नहीं समझा, किसका बी वाला पॉइंट? अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज वाला। सो बी वाला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे को कोई और लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से मेरे को रिपोर्ट करना है, तो मैं रिपोर्ट करूंगा, बट लेकिन कैसे होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, क्लियरली डिफरेंशिएट होना चाहिए, दोनों चीजें मर्ज नहीं हो जानी चाहिए। या दोनों चीजें क्या नहीं हो जानी चाहिए, मर्ज। तो वरना दोनों मर्ज हो जाएगी तो नहीं चलेगा, तो क्लियरली वहां पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, याद करो, ऊपर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट पैरा क्या आ जाएगा हमारा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या आ जाएगा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, सिग्नेचर। ये सिग्नेचर कैसे करोगे, पर्सनल नेम है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो साथ ही साथ क्या लिखना पड़ेगा, पार्टनरशिप। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लेस, और आखिर में हमें क्या लिखना पड़ेगा। Now, when we talk about signature, there are a couple of more points that we need to consider। कि जब भी हम लोग सिग्नेचर करेंगे, वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेरा मेंबरशिप नंबर क्या लिखना पड़ेगा, पर लेकिन साथ ही साथ फॉर्म का क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन। प्लस देयर इज एडिशनल रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं यूनिक। क्या कहते हैं उसे, व्हाट इज यूनिक? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये रिक्वायरमेंट है ना, ऐसे 700 की नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। इसका जिक्र अगर तुम्हें याद हो प्रोफेशनल एथिक्स में आया है। अब यूनिक वाला पॉइंट क्या कहता है कि देखो प्रॉब्लम मार्केट में ये हो रहा था, a lot of people who are not chartered accountants were signing their report। ठीक है, they were just faking themselves के non chartered accountant या रिपोर्ट साइन करके सर्टिफिकेट साइन करके दे। चलो ऑडिट रिपोर्ट में पकड़े जाएंगे, पर लेकिन जो स्टॉक सर्टिफिकेट देना होता है वो बहुत सारी जगह पे वो क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, when they were not chartered। दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि भाई यार जो हम कितने ऑडिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं नहीं।
अब लोग 20 आ रहे, 21 की कर रहे थे, 22 की कर रहे थे, तो पकड़ना उनको क्या हो रहा था मुश्किल है। उस ICAI came up with the concept of unique document identification। तुम ICAI की वेबसाइट पे जाओ, अपना मेंबरशिप नंबर डालो, जो डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अटैच मतलब क्या करना चाहते हो, जिसके ऊपर ओपिनियन देना चाहते हो उसे डालो। ICAI के अंदर यूनिक नंबर क्रिएट करेगा हर एक डॉक्यूमेंट का अंदर, तो वो यूनिक नंबर वहां पे डालेगा। तो अगर कोई भी बंदा वेरीफाई करना चाहे कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है, वो यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो अब हमें हमारे सिग्नेचर के साथ क्या लेना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसे 700 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अलग से रिक्वायरमेंट है। 2019 ऑनवर्ड्स यूनिट को क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी फॉर ऑल अटेस्टेशन फंक्शन। तो अब हमें यहाँ पे टेक्निकली इसके साथ नीचे क्या देना पड़ेगा, तो वहाँ पे लिखो, तो वहाँ पे क्या आएगा, लास्ट टाइम पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या आएगा, थोड़ा बहुत जॉब जॉब क्या आएगा, टाइटल, टाइटल के बाद क्या आएगा, एड्रेस के बाद क्या आएगा, ऑडिटर्स ओपिनियन में क्या आएगा, ओपिनियन प्लस सी से क्या आएगा, डेट, ई से क्या आएगा, ई से क्या आएगा, टाइटल, ई से क्या आएगा, फिर क्या आएगा, नोट्स। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा, सीआर। एस से हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। S2 से क्या आएगा, साइन। आई से हम क्या है, इंडिपेंडेंट। ए से क्या है, ऑडिटर्स। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कोई कंसर्न पैरा, की ऑडिट मैटर पैरा। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी इस पर AFRF किसकी है, मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं देखने की जिम्मेदारी, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं देखने की जिम्मेदारी। अगर समझो तुम्हारे ऊपर दोष चार्ज विद गवर्नेंस है, तो वहां पे नोट लिखो कि ऊपर ओवरसाइट कौन रखेगा, दोष चार्ज विद गवर्नेंस। ये नाम जो मैनेजमेंट है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस है, वो लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होता रहेगा, चेंज। मैनेजमेंट के बदले मैनेजिंग कमेटी आ सकता है, या फॉर एग्जाम्पल लेटर से वहां पे पार्टनर आ सकता है। होस्ट चार्ज गवर्नेंस में डेजिग्नेटेड पार्टनर आता है, तो लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने क्या बोला, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या चाहिए, एक रीजनेबल अश्योरेंस, और उसी के ऊपर क्या इशू करना चाहते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सा लेवल ऑफ अश्योरेंस है, और क्या वो गारंटी है क्या, नहीं। फिर चीजें इंडिविजुअली या अग्रीगेट क्या हो सकती है, कब हो सकती है, अगर वो यूजर का डिसीजन क्या कर रहा है। अगर AFRF के अंदर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, तो हम वो भी क्या करेंगे, वहां पे दे देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे अपन ने क्या बोला, कि हमारी और जिम्मेदारी क्या है, कि हम क्या रखेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट, प्लस हम क्या यूज करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर इज अन्ना हुज ऑलवेज। फिर उसके बाद हमारी और जिम्मेदारी क्या है, रिया। आर से हम क्या बोलेंगे, आई से हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स को के लिए हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। ए से अप्रोप्रिएटनेस, तीन चीजों का देखेंगे, डिस्क्लोजर, एस्टिमेट्स। फिर उसके बाद जी से गोइंग कंसर्न, और ओ से ओवरऑल प्रेजेंटेशन। ग्रुप ऑडिट है, तो एज ए ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी क्या है। फिर अब दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को क्या कम्युनिकेट करेंगे, तीन ब्रांच को टाइम पर, लेकिन उसमें है क्या, मैं पूरा अपना ऑडिट प्रोग्राम दूंगा क्या, क्या कम्युनिकेट करता हूँ। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। फिर बाद में मैं DCWG को वापस क्या लिखित में दूंगा, कि मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट, और प्लस क्या कंप्लाई करता हूँ, एथिकल। फिर दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को मैं क्या बता दूंगा, ये ऑडिट मैटर इन केस ऑफ लिस्टेड। फिर अगर लॉ में भी लिखा हुआ है कि हमें क्या रिपोर्ट करना है, 700 में भी लिखा है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, बात खत्म। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो मेरे को एक और पैरा देना पड़ेगा, किस नाम का, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी। फिर सिग्नेचर कैसे होगा, पर्सन नेम। पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका नाम लिखो, पर मेंबरशिप नंबर भी आएगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, और आखिर में क्या आएगा, यूनिट। फिर प्लेस कौन सा होगा, जहां पे रिपोर्ट को क्या किया है, साइन। डेट क्या होगा, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन व्हिच साइन हैज बीन। जब हम ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो उसका लोकेशन क्या हो सकता है, हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन इंक्लूडेड इट विद इन द रिपोर्ट। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अपेंडिक्स दे सकता हूँ, पर लेकिन अपेंडिक्स दे रहा हूँ तो एक रेफरेंस दो के कहाँ पर दिया है। तीसरा वेबसाइट का किसी का रेफरेंस, पर लेकिन वेबसाइट का रेफरेंस जो दे रहा हूँ वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पे उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, इसका फलन है। हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक आध दो कंपनी के भी क्या करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, जिससे पूरी चीज पूरा रिपोर्ट वापस देखेंगे ना, तो ये फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा।
ऑल्सो इसमें और थोड़े थोड़े 2-3 पॉइंट्स बाकी है और फिर इसकी क्या करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, कोई बोल रहा था ये सेंड करो, इसमें ना ये बुक में तो मैंने दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है, तो सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट लेना ना। एयर ड्रॉप चालू कर दो सिर्फ। देखो ये पेज आया कि पूरा पेज सब कुछ आया। सेंड कर दे सब कुछ। थैंक यू वेरी मच योर वंस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा पब्लिक हल्का हल्का सा रिवाइज करके आना। ठीक है, सो ये फॉर्मेट काफी अच्छा खासा बड़ा था, एक बार प्लीज रीड थ्रू करके आओ। और एज मेंशन इन द प्रीवियस लेक्चर, स्टार्ट मेकिंग ये तो थोड़ा थोड़ा सा समरी नोट्स और वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर द रिविजन।